Hello, Mishba. How are you? I'm good, Asad. How are you? I'm perfectly fine. How's it going? It is going okay. Just as best about breathe as it can go. Nice, Bas. nice. So before we jump into the conversation, like the real conversation, I would love to hear about your journey. Like, from where did you start? How does the design came to your life, and how does like from where did you started and till now? I would love to hear about your journey. So my journey basically started. The origin story, if you want to know, is that I've always been kind of an artsy kid, and unfortunately, I could not draw very well. So I went into design. आई थिंक ये डिजाइनर्स के साथ ये कहानी फाइन आर्ट्स में नहीं जा सके क्योंकि औकात नहीं थी ड्रॉ करने की तो इनिशियली मेरा आइडिया लाइक प्लान नहीं था डिजाइन की तरफ प्रोफेशनली जाना सो आई वाज गोना डू अ बीबीए कॉमर्स वगैरह में पढ़ रही थी ए लेवल्स में मगर फिर हमें वो ले गए लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटी की टूर कराने हमने कहा वाह वाह हम तो इधर आएंगे तो उधर मैंने कम्युनिकेशन डिज़ाइन में मेजर किया एंड आई डिड अ कपल ऑफ माइनर्स एज वेल एंड बेसिकली आफ्टर दैट फिर वही तो नौकरी अब डिज़ाइनर की ही मिलेगी सो आई स्टार्टेड एट ए स्मॉलर कंपनी एक्टिव कैपिटल आईटी and I started there as a digital marketing associate, and then they kind of gave me all the roles the devs did not want to do. So all the non-dev roles were mine. I was handling HR. I was also doing manual QA testing, and that's where my interest in tech basically started. तो जब मेरे 2-3 साल हो गए तो मैंने सोचा अब मुझे क्या करना है जिंदगी में मैंने कहा प्रोडक्ट में ही रहना है काफी माल है यूआई यूएक्स में एटलीस्ट उस वक्त तो था but yeah I started looking I decided that instead of pursuing QA that would be a bigger learning curve so I thought about what would be an easier way to get into product or get into tech and that was just to pursue UX design so that's what I did like most people I opened Google का course on Coursera एक दो हमने मॉड्यूल किए डाला वाला पोर्टफोलियो पे केस स्टडीज बनाई फिक्शनल मैंने अपने फेवरेट एनिमे के लिए बैंकिंग ऐप बनाई सबने मुझे कहा कि ये तो बेकार लग रहा है तो मैंने कहा अच्छा ठीक है सर थैंक यू तो बहरहाल इस तरह करते करते eventually I got like a chance to get interviewed at Ikea and for some reason they hired me I guess so here I am and at Ikea I work as a product designer but I'm technically kind of a hybrid between a PM and a PD. And I handle basically everything from ideation to like the launch of it. And now my manager, Abbas Shahid, he wants me to also handle the post-launch part of it. So Nice, that's something I have to learn now too. perfect. So, how does your day at Baikia typically looks like? It looks like me reaching the office. उम्मीद से कि मैं वक्त पे पहुंच रही हूँ. And I think that's the case for most people. But yeah, reaching the office, settling down, going through our GChat. So we use the Google Suite for our like Bakia's everything. So going through all the channels, कि क्या बात हुई है, क्या बहस हो रही है, या क्या चीज़ करनी है. Abbas usually assigns us like the product team tasks at the start of the week, and he does follow-ups at the end of the week. So that's what I kind of work on. I know what I'm working on for the week, and if वही के काम कर लिया भेज दो नहीं टिकट्स मेरी हैं तो हमारे टेक के साथ स्टैंड अप होता है स्क्रम होता है एवरी डे सो आस्किंग अबाउट माय टिकट्स सो द फर्स्ट हाफ इज मोस्टली लाइक लोगों से पूछना कि भाई काम करके आप दे दिया है या मुझे किसी को देना है फॉलो अप्स करना बिकॉज दैट्स व्हेन मोस्ट पीपल आर एक्टिव एंड अप आफ्टर लंच तो ना सब गायब हो जाते हैं आपको पता नहीं होता है सो या उस वक्त तो फिर इट्स मोर लाइक कि मैं बैठ के अपना डिज़ाइन का काम करती हूँ ये वगैरह लाइक अनलेस आई हैव यूजर टेस्टिंग और समथिंग या डॉक्यूमेंटेशन काइंड ऑफ थिंग्स देन आई माइट डू दैट Nice. So, do you guys like use design system or something? Yeah, so when I joined Baikia in July 2023. उस वक्त वो लोग अपना UI revamp कर रहे थे, like they were developing the final version of it. So one of the things I took on was actually creating the design system file for Baikia. Um, yeah, and that's what I did. I made the design system, I made all the components, and I made the building blocks. And my aim with that was to get us to a place where the PMs can do prototyping themselves without it being absolute shit. Because you as a designer will know कि जब कोई आपको PM अपनी तरफ से बना के देता है तो वो उसमें ज्यादा काम लग जाता है rather than कि वो आपको सीधा खुद ही बताता समझा देता है इस तरह बना दो ना मतलब तो मेरा आइडिया ये था कि कंपोनेंट से कम से कम बनाओ ताकि मुझे हर चीज का साइज छोटा बड़ा ऊपर नीचे ना करना पड़े रंग वही हो ठीक है बाकी चीजें मैं देख लूंगी Completely makes sense. So yeah. So again, Baikia has like a couple of million of downloads, probably 10 to 12 के बीच में कहीं है, right? And when since now you are also seeing the post launch part, तो does that pressure actually comes on your shoulder कि जो भी decision आप लोगे उससे like millions of people जो है impact होंगे वो तारीफ भी करेंगे वो गालियाँ भी दे सकते हैं so overall like कोई pressure वगैरह पड़ता है इस चीज़ पे या like
इट्स जस्ट के एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है तो लेट्स जस्ट फाइंड आउट? I think it's a mix of both. Mostly it's just pressure internally in the sense that because we have a pretty open culture at Bikea, like all the founders are accessible. Muneeb sits with us in product, Manan handles VI, Rafiq sits in ops, and like we're on the fourth floor, so sab takrate rehte hain, baat hoti hai. So obviously when you have this kind of like insight and you're sitting in these meetings and you're watching everyone either argue or discuss कि भाई ये करना है इस तरह कंपनी चलानी है, तो आप पे वो होता है प्रेशर कि यार कुछ खराब ना कर दूं मैं. And but that's also like part of learning. Like Bikea itself is an example of how they have constantly tried to evolve and change and figure out कि भाई मसला क्या है, बढ़ाया उन्होंने कुछ या कम किया, to adjust to the market, and they're still doing that. And I think that's like a very valuable quality that they have, and part of the reason why they're still surviving as a startup. So yeah, there is pressure, but it's more like कि अच्छा मैंने निकाल दी, I hope it meets the metrics. If it doesn't meet the metrics, तो internally ही फिर बातें सुन रही हैं कि भाई ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं आया. Yeah, it's usually that. Post launch में I am not that involved. बस कुछ चीज़ फटे ना वो तक ऐप जाके बग ना आए, कोई फटे ना, बाकी सब ठीक है. Metrics हम देखते रहेंगे because obviously slowly adoption होती है और ये सब. That's like the main thing. So speaking of Patna, how does Bikea reacts to the hacking side of it? Like, back in the days, Bikea got hacked for थोड़े से टाइम के लिए, but it got hacked. तो like उस टाइम पे like क्या किया था कंपनी के अंदर and what happened? अच्छा से मजे की बात ये है कि I got hired when I got like my interview, और मुझे HR की तरफ से कॉल आ गई कि आपको आना है, तो मैंने डेट दे दी थी कि हाँ मैं 1 महीने बाद आ रही हूँ, ठीक है. सो आई थिंक 2 हफ्ते उसके पहले Bikea हैक हो गया. उस वक्त आई वाज ऑफ फ्रॉम माय प्रीवियस जॉब. तो मेरे को पिछले कॉलीग का फोन आ रहा है कि तुमने देखा है, तुमने क्या कर दिया जाके Bikea में. ये मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि तुमने Bikea में जाके क्या कर दिया है. मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया है, मैं उस वक्त सो रही थी और बिल्कुल उठ के फिर चेक कर रही थी. But yeah, so the hacking part is kind of like predating me, but all I know that the hacking did is that it enforced a lot of like security protocols within our organization, having like 2-factor authentication and other things. But yeah, it was an interesting experience. कि suddenly out of all the apps to hack, they're like हाँ ये bike वाला app हम hack करते हैं भाई, ये करके देखते हैं. Yeah, cool. So I mean काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उसमें like as a user point of view से भी काफ़ी interesting थी. और फिर उसके बाद आई थिंक Bikea हैज़ नाउ दैट probably a habit, क्योंकि जब हैक हुआ था ना तो बहुत उल्टे सीधे नोटिफिकेशंस आ रहे थे और गालियाँ आ रही थी. तो उसके साथ साथ आई डोंट नो कि ऐसा क्या हुआ कि व्हेन दे लाइक गॉट बैकअप और वो सारा वो उनकी जो भी एक्सरसाइज थी वो हुई और इट गॉट सेफ अगेन. अब उनके जो नोटिफिकेशन है काफ़ी रोमांटिकली आते हैं. अब समझ नहीं आ रही कि हैक्ड है या इट्स जस्ट अ हुकअप फॉर द नोटिफिकेशन, ये क्या चीज़ है. तो लाइक वो क्या प्रोसेस होता है, लाइक इसके लिए कोई यूएक्स राइटर वगैरह है या मार्केटिंग की टीम है जो कि इस चीज़ को हैंडल करती है? Yeah, so usually our notifications are handled by marketing, like इस तरह के जो होते हैं. And no, this was not a hacking. These notifications were on purpose because I don't know if you've noticed there is a trend with other apps as well कि इस तरह की notifications भेजते हैं. दूसरे apps तो कुछ ज़्यादा ही thirsty हो जाते हैं, हम तो फिर भी हलाल रहने की कोशिश करते हैं. So like full, I've seen notifications from other apps where there's even an eggplant emoji and like and I'm just like, calm down, sir. Which app is this? This isn't even a dating app. Why the hell are you doing this? So yeah, I think that was just us like trying to follow the trend because Pakistani कौम भी ऐसे, आप उनसे seriously बात ही नहीं कर सकते हैं. आपको मजाक मस्ती शुगली करके आप बात कर सकते हैं. And I think the best example of this is like the small quick war that we had with India कि जंग होने वाली है, मिसाइलें आ रही हैं, सबकी फटी हुई, लेकिन फिर भी मीम्स बनाई जा रही हैं ट्विटर पे ना. पाकिस्तानियों के बच्चे पूछ रहे हैं यार अभी कल कर लें जंग ताकि एग्जाम कैंसिल हो जाए, पढ़ना ना पड़े मुझे. इस तरह की बातें हो रही हैं, पता नहीं क्या क्या बातें हो रही थी. मजा आ गया था. मतलब यार डैडी ये मिल्लत बना दिया आपने एयरफोर्स के बंदे को. So like, yeah, that's just how we are as a people. So I feel like even like if you're operating in the Pakistani local market, you eventually will have to and be forced to take up that tone. Yeah, मेक सेंस के लाइक हमारी प्रेशर हैंडलिंग शायद अब इस तरीके से हो गई है कि अगर हमें पता है कि बहुत सीरियस मसला है तो जस्ट डक कर दो उसको पीछे, स्कूप कर दो मीम्स के थ्रू. तो या आई मीन इट मेक सेंस एज अ जनरेशनल थिंग. हम सब सॉर्ट ऑफ इससे रिलेट कर सकते हैं. Cool. So since you again work at Bikea and it has like couple of millions of downloads, और again वो pressure तो होता ही है आपका decisions पे, but ऐसा कभी हुआ है कि like not even at the Bikea overall design journey में कहीं पे like कोई बहुत बड़ा failure हो? Since we always talk about
achievements and positivity and Yeah. stuff like that. So कभी ऐसा हुआ कि like बहुत like probably the biggest failure that you had और फिर उससे takeaways क्या थे, like how did you manage that? To be honest, if I reflect on like my professional journey, I think my biggest failures have just not necessarily been design related, but वही कि जब आप नौकरी कर रहे हो ना, मेरे अब्बा कहते हैं नौकर की तो नखरा की, तो वो उससे related होते हैं कि maybe I end up not getting along with my manager, I don't get along with my manager from the get-go, or you know, I'm just not good with dealing with certain people. And this is also where I know like a lot of people talk about this, and there are a lot of books on this as well, कि how to deal with people and how to not, like, you know, especially in a corporate environment or a professional environment, because for a lot of people like designers and even developers, हम लोग वो लोग हैं ना जो कोने में बैठ के अपना काम करना चाहते हैं. हम लोग करते ही यही हैं, पूरी जिंदगी ये करते आए हैं. So like when you have to kind of go into that space, पाकिस्तान में जहाँ पर I mean the whole world is political in workplaces, like everywhere you'll find political aspects in some way. People are going to be biased, but I feel like पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा culture है, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि आप शराफत से काम करें ना. तो इससे I think when I've been kind of pushed into corners and I've had to deal with that, I think those were my failures, where I may have been too honest, or I didn't know what to say or how to negotiate. I kind of viewed that as like my failures professionally. And my takeaways have always been like to do better. So like initially, I think I had this one experience where a manager tried to gaslight me in one of my jobs, and I was like, no, thank you. So next job, I made sure that everything is documented. And yeah, and I made sure that the manager is someone I can actually talk to and I vibe with. Like that's the most important thing. I made sure that generally people around me, you know, I'm usually an honest person. So like I am, this personality is what you will see even if you meet me outside the podcast. So like I make sure that people are kind of accepting of that, because I feel like in corporate spaces, they also want you to be very cold and sterile. So yeah. I try to like adjust, but it's a work in progress, honestly. Like you're always gonna have like these failures in some form. Even design wise, there are gonna be situations where you will look back on your design and you'll be like, "ये क्या बकवास बना रही थी मैं, ये क्या था?" So वो तो होता है. It's all part of growth, honestly. Like ट्रू ट्रू. सो ये जो पॉलिटिक्स वाली चीज़ है या प्रोबेबली जो एक ऑनेस्ट पर्सनैलिटी है ना, इस चीज़ से मैं भी बहुत ज़्यादा इसलिए रिलेट करता हूँ बिकॉज इवन इन द इंटरव्यू प्रोसेस वन वे द अदर, जितना भी मैंने हायरिंग मैनेजर या उस टाइम पे जो मेरे इंटरव्यूअर है वो जितना कहते हैं कि बी ट्रांसपेरेंट, और हमें तो बंदे ही ऐसे चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हों, रेडिकली ट्रांसपेरेंट हों, हमें ना करने वाले बंदे नहीं चाहिए, बट एट द सेम टाइम दे वांट अ कल्चरल फिट जो कि ये असर करता हो. ठीक है, तो विद इन द इंटरव्यू वेन एवर आई शोड माई ऑनेस्टी, तो इट एक्चुअली वेंट अगेंस्ट मी. oh yeah, same. Even during a job, it can go against you, right? Yeah. Like whether you're voicing an opinion to a stakeholder or to your manager, even to your colleagues. Like there are also very snaky people के वो आपसे खुद ही आके पूछेंगे कि यार तुम असद के बारे में क्या सोचती हो? नहीं, असद मुझे बहुत बुरा लगता है. वो असद को आके बताएंगे कि ये कह रही थी. Like उनकी नौकरी ही यही है. That is their skill set. Yeah. And oftentimes these are people who don't have the skill set for the job that they're doing. So this is how they kind of get around. But yeah, you will see this a lot, honestly. So again, जहाँ पे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है वहाँ पे एफिशिएंसी तो इफेक्ट होती है, राइट? और करंट मार्केट में अगर हम बात करें, व्हेन देयर आर अ लॉट ऑफ गोइंग ऑन, एम्प्लॉयर साइड पे भी दे आर ऑलवेज हायरिंग एंड कैंडिडेट्स वांट टू अप्लाई और मे बी दे आर लुकिंग फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटीज़. तो विद इन द पॉलिटिक्स आई थिंक वो एफिशिएंसी कहीं ना कहीं ज़रूर सेक्रीफाइस होती है कि लाइक हमेशा ही हायरिंग हो ही जा रही है, लाइक तुम्हें कोई बंदा नहीं मिला पूरे पाकिस्तान में जो कि तुम्हारी कंपनी में काम कर सके, या सिमिलरली. और होता भी है कि लाइक इवन आई डोंट नो कि यू एग्री विद दिस और नॉट, लेकिन आपने मैसेज किया है किसी ने कोई चलो बहुत हाइपर पर्सनलाइज्ड मैसेज क्राफ्ट किया है, ठीक है, अगर मैं जीपीटी की लैंग्वेज बोलूँ तो किसी ने हाइपर पर्सनलाइज्ड मैसेज जो है वो क्राफ्ट किया है एचआर को. एचआर ऑनलाइन है और प्रोबेबली एचआर को, चलो मैं सिर्फ बदनाम नहीं करता, एनी हायरिंग मैनेजर प्रोबेबली इज ऑनलाइन हु पोस्टेड दैट. उसके पास इतना टाइम नहीं है कि ही प्रोबेबली लुक एट योर मैसेज या सीवी या पोर्टफोलियो एंड वो सिर्फ एक्नॉलेज का ही मैसेज या मेल करते हैं, बट नेक्स्ट डे या प्रोबेबली 3 घंटे बाद, आधे घंटे बाद वो फिर से पोस्ट करेगा कि भाई वी आर हायरिंग एंड वी आर लुकिंग फॉर दीज काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल. एंड यू आर लाइक कि भाई तुम्हारे पास और तुम कम से कम देख तो लो उसे, बताओ तो सही कि मुझे मिल गया कुछ, राइट? और फिर इवेंचुअली लाइक यू हैव टू गो टू सम अदर सोर्सेज, लाइक आप फिर बाकी जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ होते हैं आप उनको मैसेज करके देखते हो कि लाइक मैंने इस तरह से अप्लाई वगैरह किया तो कैन यू प्लीज़ रिकमेंड मी फॉर द रोल, या इस तरह की चीज़ें. तो ये चीज़ें भी मुझे लाइक समझ नहीं आती हैं कि क्या ये चीज़ पॉलिटिक्स से आ रही है, क्या ये चीज़ लैक ऑफ परफॉर्मेंस से आ रही है. बिकॉज जो जॉब डिस्क्रिप्शन में जो परफॉर्मेंस तुमने मांगी हुई है मुझे वो करंट एम्प्लॉयज़ में नहीं नज़र आ रही, तो उसका मैं क्या करूँ?
So like, what's your take on this? Like, does this happen to you as well when you were looking for opportunities? Yeah, it does happen. So, but I also somewhat empathize because मैं अपनी पिछली company HR ही थी. So, but I also felt like maybe we didn't have that much turnover or whatever, but I was a little bit quicker or nicer about certain things. But I have just found कि यार HR कहीं भी हो ना वो मसले होते हैं उनके साथ बेशक वो अच्छे लोग भी हों because either the company pushes them in a corner or whatever it is वो ऊपर नीचे हो जाता है मामला. And like when you're looking for opportunities, so that is just like a joke on its own, right? Because I'm the kind of person कि मैं अगर आप मुझे case study जैसे मैंने एक दफ़ा केस स्टडी सबमिट की थी तो मैंने सिर्फ अलग से उसका फिग्मा फाइल नहीं बनाया मैंने फिर उसके साथ एक लूम वीडियो भी बनाई सो आई डू लाइक एक्स्ट्रा थिंग्स टू रियली स्टैंड आउट एंड शो एफर्ट सो उसमें तो और भी फिर आपको तब चढ़ती है कि रिप्लाई कर दो मेरे भाई एंड यस समटाइम्स आई आल्सो फील लाइक सम कंपनीज आर लाइक जो हायरिंग मैनेजर होते हैं क्या उनके सर पता नहीं कहाँ पहुंचे होते हैं दिमाग कहाँ पहुंचा होता है आई रिमेंबर आई वंस वेंट फॉर एन इंटरव्यू एट अ बिग कंपनी not a big company, but like a regular tech company, a good tech company. And before the interview happens, when they seat you, the thing that I like to do is I like to sit down and go through my CV and just remember कि अच्छा मैंने क्या क्या किया हुआ क्या बकवास करनी है. That's usually like a good thing to do. I went into the interview and the only question they asked me, Asad, was कि tell us about your life. We want to know who you are. मैं बैठे सोच रही हूँ मुझे टेड टॉक देनी है क्या मुझे अपनी बायोग्राफी याद करके आनी थी एकदम ऑन द स्पॉट पूछ लिया अब मैंने बता दी उनको ऑनेस्टली चीज़ें बता दी भाई ये सीन है मेरी थोड़ी अलग सी जिंदगी रही है मेरी अलग सी सोच है एंड देन एट द एंड दे वर लाइक थैंक यू फॉर कमिंग and we will get back to you. We don't ghost people. We will take time, but we will get. They never got back to me. I said they never got back to me. I actually bumped into that hiring manager. I think I saw him once because वो आधी से ज़्यादा टेक कंपनी शारा फैसल पे इधर कराची में तो हम सब टीपू सुल्तान जाते हैं तो I think I even saw him once at a coffee place that I went to and it was kind of awkward because I think he recognized me too so we were both just like what and my friend who was sitting with me is like he's looking at you all the time like अब मैं क्या करूँ मैं हेलो करूँ क्या करूँ या पूछूंगे why didn't you get back to me रिजेक्शन का ईमेल भेज दें बेशक ऑटोमेटेड हो वो भेज दें even my first job at Active Capital IT I remember when the first day I was starting there उससे पहले मैंने कोई 2 महीने पहले कहीं और इंटरव्यू दिया था उनका पहला दिन आ रहा है कि अच्छा हम शायद आपको ले सकें शायद ना ले सकें I'm like बहन माफ कर दो मैंने तो नौकरी ले ली है अब आप मतलब and it is understandable some bigger companies might have longer processes but also internally जब आपकी चीजें चल रही होती हैं तो hiring managers के पास वक्त नहीं होता है करने के लिए but at the same time I also think that also reflects like the professionalism of the company to some extent or the team like it's kind of a red flag if they take so long to get back to you or if it's kind of a red flag like sometimes when I graduated I used to go into companies to give tests I didn't have to but I would do that just so I could kind of get a vibe check कि vibe क्या चल रही है कंपनी में सब एक दूसरे को देख रहे हैं या अपने काम को देख रहे हैं सही है इसको वैसे आई एज्यूम कि हम लोग वैसे तो खैर मैं भी घोस्ट 4 दफ़ा हो चुका हूँ फाइनल इंटरव्यू के बाद बट उसका मतलब मुझे तो फ़ायदा एटलीस्ट यही होता है अब तो मैं लाइक कहीं पे भी अगर कभी इंटरव्यू या दे गिव मी अ प्रॉब्लम टू सॉल्व तो उससे मेरा ही फ़ायदा होता है तो मुझे एक्सपोजर तो बढ़ता ही है मेरा कि लाइक मैंने ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है तो मैं उसको इतने अच्छे तरीके से करता हूँ ठीक है इट डजेंट मैटर कि वो वहाँ पे मैच करता है मेरा या नहीं करता 100% कि जो प्रॉब्लम मैंने जैसा सॉल्व किया क्या उन्हें वैसे ही चाहिए था कि नहीं अगेन इट्स अ फर्स्ट इटरेशन उस पर बात हो सकती है फिजिबिलिटी पे बात हो सकती है उसके बाद उसको रिफाइन किया जा सकता है बट उसको मैं इतने अच्छे तरीके से करता हूँ फिर मैं उसको बेहांस पे डाल देता हूँ या I mean, मैं भी इसीलिए करती हूँ मैं अगर जॉब्स पे अप्लाई करती हूँ केस स्टडीज करती हूँ मैं इसीलिए करती हूँ कि भाई रिजेक्ट कर भी देंगे मैं बेहांस पे डाल दूंगी इसलिए आप कोशिश करते हैं अच्छे से करें और देखो बात यही है कि मुझे जो गुस्सा आता है एज अ डिजाइनर ना आप जब नौकरियों के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो लोग चाहते हैं बिल्कुल फिनिश प्रोडक्ट मिले एंड आई थिंक देयर इज जेन्युइनली एन एक्सप्लॉइटेटिव प्रैक्टिस गोइंग ऑन वेयर कंपनीज विल डू दिस विद देयर इंटरव्यूईज विद एप्लीकेंट्स कि आप एग्जैक्टली ये चीज बना के दिखाएं सब कुछ बना के दिखाएं और इसकी एक्चुअल आपको ओरिजिनल फाइल क्यों चाहिए आप जेपेग से काम चलाएं आपको ओरिजिनल फाइल से करना क्या है भाई साहब नहीं आप पहले मुझे पैसे दें उसके मतलब यू नो लाइक बहुत शेडी चीजें चल रही होती हैं कभी कभी एंड ऑनेस्टली लाइक आई नो कि ऑब्वियसली लोगों को नौकरियां चाहिए पैसों की जरूरत है खासकर इस इकोनॉमिक लाइक हालात में but I do think even like young graduates should be a little bit careful and should learn to recognize like good decent companies will not ask you to like submit the original file और do कोई बहुत लंबी चौड़ी केस स्टडी because वही बात है उन लोगों के पास भी इतना वक्त नहीं कि बैठ के वो इतना सारा पढ़ें right so usually most companies will give you a simple सी case study and then they'll just have the interview or whatever मुझे सिर्फ एक चीज़ की कन्फ्यूजन नहीं होती है विद इन द हायरिंग प्रोसेस कि भाई मेरी सीवी तुम्हारे पास है मेरा पोर्टफोलियो तुम्हारे पास है
मेरे 3 इंटरव्यूज़ तुम्हारे पास हैं, तुम्हें फिर भी केस स्टडी 5 साल तो मुझे काम करते हुए हो गए, ऐसा कौन सा काम है जो मैं Exactly. नहीं कर सकता? राइट? कोई भी Yeah. कैंडिडेट ऐसा कौन सा काम है जो वो नहीं कर सकता भाई, उसको नहीं, प्रोबेबिलिटी देना absolutely, डेली। it's insulting at this point. I don't, आपका मुझे नहीं पता कितना एक्सपीरियंस है, मेरा तकरीबन 5 साल का प्रोफेशनल वर्किंग एक्सपीरियंस हो गया है। सेम। सेम ना, सो इट्स लाइक इस एज में आके अब मैं क्या हर वक्त आपको केस स्टडी बना के दूं, मतलब कुछ जैसे अभी अभी शायद किसी ने मुझसे एक दफा रिक्वेस्ट किया था कुछ महीने पहले कि जी आपका अभी जो काम है थोड़ा पुराना पड़ा है behance पे, आपको नया डिजाइन दिखा दें, तो मैंने उनको बना के भेज दी केस स्टडी। मैंने कहा बाद में डाल दूंगी behance पे। सो लाइक ये चलो चल जाता है, बट यूजुअली वही है कि आई फील लाइक एट दिस स्टेज ऑफ आवर करियर्स इससे बेहतर ये होगा कंपनी के लिए भी और हमारे लिए भी कि आप सीधा हमसे मीटिंग करके बात कर लें, मैं आपको वॉक थ्रू दे दूंगी अपनी फाइल्स का, मैं सब कुछ कर दूंगी ना। दैट्स जस्ट मच मोर कन्वीनियंट, इट सेव्स टाइम एंड इट्स आल्सो जस्ट मोर रिस्पेक्टफुल या कि अगर आप वाकई में जानना चाह रहे हो इस बंदे को फिग्मा चलाना आता है या नहीं, या जो भी वो आप उसी वक्त असेस कर सकते हो अगर आपको खुद भी थोड़ा आइडिया है, पता है। और फिग्मा चलाना एक मतलब ज़ाहिर है जो भी बंदा प्रोडक्ट का बंदा है, अब तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है राइट, तो उसे डेफिनेटली कुछ तो पता होगा। और कोई भी ऐसा फन्ने फन्ने होता है जिसको सब पता होता है फिग्मा का, हर दूसरे हफ्ते तो उनकी अपडेट आ रही होती है राइट। तो ठीक है, चीज़ें सीखने में टाइम लग सकता है, ज़ाहिर है वो भी तो अपना टाइम दे रहा है ना आपको, वो भी तो प्रॉब्ली आपको अपने 3 4 5 या जो केस स्टडीज़ होती हैं उनकी अक्सर डेडलाइंस जो है वो 2 3 दिन होती हैं, कुछ की तो हफ्ता भी होती हैं। तो लाइक या जब बंदा इतना टाइम इन्वेस्ट करे, एंड आई एज्यूम कि इसमें लाइक एक क्वेश्चन मेरा सपोजिटली ये बनता है, या कोई भी कैंडिडेट जो है वो जो अप्लाई कर रहे जॉब्स के लिए उसका ये बनता है कि यार 5 इंटरव्यूज़ हैं, सीवी है, प्रोबेबली केस स्टडी है जो कि मैंने सबमिट की है, पोर्टफोलियो है, तो यार तुम्हारी एनालिटिकल स्किल्स कहाँ गई हैं जो मुझे इतनी ज़्यादा चीज़ें तुम्हें एज एन एविडेंस देने की ज़रूरत पड़ रही है राइट, फिर हाँ, तुम्हारा लाइक जजन मतलब क्राइटेरिया आप मुझे कहाँ है? इमिग्रेशन का वीजा दे रहे हो जो 5 इंटरव्यूज रखे हुए हैं क्या, मतलब किस चीज का वीजा मिल रहा है, हज करने का वीजा दे रहे हो या राइट। मतलब क्या मिल रहा है मुझे, लाइक समटाइम्स इट डजंट मेक सेंस कि इवन स्मॉलर कंपनीज विल हैव इट। आई अंडरस्टैंड कि बड़ी कोई मतलब आई डोंट नो लाइक टेम्पर सिस्टम टाइप कंपनीज हो जो बहुत बड़े कॉर्पोरेट्स हैं हमारे यहाँ, वो इस तरह करें मैं फिर भी कहूँ चलो चलता है, बट लाइक SME टाइप कंपनीज कर रही होती हैं, हम लाइक सर आप अपना वक्त भी जाया कर रहे हैं, मेरा वक्त भी जाया कर रहे हैं, कसम खुदा की, मतलब थोड़ी अकल अकल पाओ ना, तो वो वाली बात आ जाती है। तो पॉइंट इज कि अगर कल्चरल फिट देखना है राइट, तो वो तो अभी तक तो पता चल जाना चाहिए ना कि है कि नहीं है। Absolutely. Like I was really lucky with Baikia in this case. So मैं Baikia में इस तरह मेरी like hiring हुई थी कि मैंने बताया था अपने दोस्तों को मैं प्रोडक्ट डिजाइनर की नौकरी ढूंढ रही हूँ. So my friend sent me Abbas का post. Abbas had posted himself on LinkedIn कि भाई मैं फलां बंदे को ढूंढ रहा हूँ and I'm willing to give someone who's not super experienced in product a chance. And if you want to have a chat, let me know. So I actually had like a call with him and he just asked me a few questions. ये सब तुम्हें पता है आता है क्या एक्सपीरियंस क्या, मतलब हमारी 15-20 मिनट की मीटिंग होगी ज्यादा. एंड दैट वाज इनफ फॉर हिम टू बी लाइक हाँ ठीक है, आई थिंक यू शुड अप्लाई, आप फॉर्म पे ऑफिशियली अप्लाई कर दो और फिर हम देखते हैं. तो फॉर्म पे अप्लाई कर दिया, उन्होंने केस स्टडी भेज दिया, एंड देन आई जस्ट हैड लाइक वन इंटरव्यू विद मुनीब एंड अब्बास एंड दैट वाज इट. सो दैट वाज द एंड ऑफ द स्टोरी. या या सो वही बात है कि मतलब मेरे मैनेजर माशाल्लाह ऊबर से आए हैं, बाइकिया में नाइस। पढ़े लिखे आदमी हैं, इनको इतनी अकल थी ना कि उन्होंने स्ट्रीमलाइन कर लिया अपना प्रोसेस. ही समवन हुज कैलेंडर इफ यू लुक एट इट इट्स जस्ट फुल ऑफ मीटिंग्स बिकॉज़ ही आल्सो वर्क्स रिमोटली फ्रॉम लाहौर. ही विजिट्स once a week every नाइस। month. So like he knows how to streamline his time, and I just wonder ये बाकी कंपनीज में लोगों को क्यों नहीं आता है. Um, या टाइम मैनेजमेंट I की just स्किल्स हैं। shaded on the whole industry. सही है, आई मीन डिजर्व तो करती है, इंडस्ट्री बैठी हुई क्यों है, इसी वजह से तो बैठी हुई है कि एफिशिएंटली काम नहीं हो रहा प्रोबेबली। Yeah, but that's also how corporates चलते हैं ना. सब जब आप बात करते हैं corporates की, वो यही होता है कि आप corporate ज्वाइन कर लो, स्लो काम चलेगा. जैसे जब मैं शुरू में ग्रेजुएट हुई थी, मेरे सीनियर्स कहते थे कि बैंक में नौकरी कर लो, काम कुछ नहीं होगा, बस नौकरी अच्छी होगी, बैठे रहना है ऐसे. अब ये सोचते हो कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, फिर आप 5 साल नौकरी करते हो और आप कहते हो यार मैं वो ही कर लेती, बेहतर होता है. उसी तरह की कोई नौकरी पकड़ लेती कॉर्पोरेट में कि स्लो काम हो रहा है, यू जस्ट अ कॉग इन द व्हील. क्या करना है मुझे मीनिंगफुल काम करके धक्के खा के. या आई मीन खैर आजकल जो हर कंपनी इज़ नाउ सपोज टू बी टेलिंग इट सेल्फ एज अ स्टार्टअप या कन्वेइंग इट सेल्फ एज अ स्टार्टअप, बट वो पेस मुझे नज़र ही नहीं आती क्योंकि मुझे हायरिंग प्रोसेस बहुत स्लो नज़र आते हैं राइट. Yeah. इफ़ यू आर अ स्टार्टअप एंड यू आर ग्राइंडिंग, तो प्रोबेबली तुम्हारी रिक्रूटमेंट टीम भी तो ग्राइंड कर रही होगी ना. वो क्यों नहीं कर रही ग्राइंड भाई, वो क्यों नहीं इम्पैक्ट लेके आ रही, वो क्यों अपने Yeah. जो हेडलाइंस हैं उस पर 147K फॉलोअर्स लिख सकते हैं, तो वो ये भी तो बता सकते हैं कि हमने जो है वो लाइक पिछले ही महीने हम लोगों ने 6 जो है बेस्ट कैंडिडेट्स उठाए हैं जो कि ये वैल्यूज़ उनकी थी, और वो अब हमारी कंपनी में लाइक हमारी कंपनी में या हमने कहीं रेफ़र किया उन्हें, हमने प्लेस करवाया उन्हें, ठीक है. वो कोई 5 6 7 8 महीने से वो अनएम्प्लॉयड थे, हमने उन्हें बेस्ट अपॉर्चुनिटी के साथ कनेक्ट कराया. तो इस पर क्यों नहीं बात होती, क्योंकि ये होता नहीं है शायद इसलिए. होता नहीं है. एंड ऑल्सो ऑनेस्टली आई फील लाइक इट्स ऑल्सो बिकॉज हमारे यहाँ अंग्रेजी सबकी पहली जुबान नहीं होती, इट्स नॉट देयर फर्स्ट लैंग्वेज, मादरी जुबान नहीं उनकी. सो
a lot of times people are either like even HR or whatever, they're just trying to do their best to write a short, quick bit. And also, this is the catch-22 situation of content creation as well, which I think you might be aware of as well. कि वो ये कि आप कोई छोटी सी चीज़ लिखो, थोड़ा सा content डालो, frequently आपको डालना है. अब आजकल ये chat GPT वगैरह आ गया तो लोग थोड़ा लंबा चौड़ा लिखवा लेते हैं. लेकिन it's usually you're copying other people's content and original thought isn't there. पहले अगर original thought किसी की होती थी, they didn't have the fluency in English to convey it, maybe, or maybe social media just isn't the right platform. Because especially now, especially now, social media, people have such short attention spans. So I feel like वो जो एक genuine like LinkedIn पे ढूंढना ना कि कोई mentorship हो, guidance हो, कुछ हो, या आपको वैसे दिखे कि भाई आप अगर फलां जगह नौकरी करते हैं, काम करते हैं, आपको क्या impact है, वो इसीलिए बहुत मुश्किल हो गया है ढूंढना. Makes sense. Or speaking of, by the way, looking for candidates looking for opportunities, and they are like using LinkedIn as probably their one of the active tools of their daily routine. So, how it is important to actually build a personal brand um, related to the industry that you are working in, ताकि you are easily discoverable या इस तरह की चीज़. So, what do you think about this? कि like कितना important है like personal brand या self brand build करना? आई थिंक अब क्योंकि जनरली मार्केट में इतनी सैचुरेशन हो गई, आप नोटिस करेंगे कि इवन नॉन क्रिएटिव लोग अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, कंटेंट डाल रहे हैं वो लोग भी. सो ये इधर तो बात पहुंच गई है. डिजाइनर होते हुए ऑब्वियसली वी हैव लाइक लिबर्टी विद क्रिएटिविटी का बहाना टू बी अ लिटिल बिट मोर गूफी और लिटिल डिफरेंट. इसमें आई थिंक वो ये भी एक कैच-22 सिचुएशन है कि अगर आपको एक सीरियस डिजाइनर होना, वो काफी मुश्किल होता है और वो फिर एक अलग किस्म की वाइब होती है जो आप सीनियर होकर करते हो. मुझे लगता है हमें यही करने की जरूरत है. ऐसे तो हम भी स्टीव जॉब्स की तरह टर्टल नेक और चश्मे पहन लेते हैं. But yeah, generally it's just very building a personal brand. I don't think it's super hard. Like आपको अपनी तस्वीर लगानी है, आप डिजाइनर हो तो एक अच्छी सी कवर बना लो. You just have to decide आपके क्या रंग शंग font want होना है. In my head that's how it is. And you just need to know your voice. कि which voice are you projecting and what you're gonna do. And तो ज़रूरी नहीं आप बैठ के reels बनाओ या कुछ. You could just be posting about things and sharing things. But it's also important. I feel like लोग ऐड कर लेंगे, like CEOs को ऐड कर लेंगे, उनको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, and you need to have a better strategy than that. Usually if someone's a CEO, they're not going to have the time of day to talk to you, right? They're busy with other things. A better strategy is usually to approach someone who's like a level senior to you. they आपके यूनिवर्सिटी के सीनियर्स हो सकते हैं, अगर आप फ्रेश ग्रेड हैं, आपके कनेक्शंस में लाइक इस तरह स्कूलमेट्स में से वो हो सकते हैं, या वैसे आप ढूंढ सकते हो कि फिर अब मुझे जब प्रोडक्ट की नौकरी चाहिए थी, आई स्टार्ट एडिंग अप प्रोडक्ट डिजाइनर्स, आई स्टार्ट लुकिंग फॉर एडवाइस, आई स्टार्ट पोस्टिंग द फिक्शनल केस स्टडीज एंड आस्किंग पीपल फॉर एडवाइस कि मैं क्या करना चाहिए. What do you guys think? Let me know. And that helps to kind of build a sense of community and also show people you are a part of the community, like a genuine part of the community. Because people will judge that, right? Again, so much competition, so much saturation, itne sare log hain. So everyone's just looking to make sure aap ek asli, genuine, like, person ho, professional ho. I agree. And by the way, keeping the saturation in mind, so what do you think? A lot of designers, since the responsibilities are getting blurrier, right? ग्रे एरिया बहुत बड़ा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर, प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट डिज़ाइन में, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, इस साइड पे बहुत ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो ग्रे एरिया वो ज़्यादा ग्रे होता जा रहा है. तो पॉइंट इज़ के लाइक व्हाट डू यू थिंक, डू प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स नीड टू शिफ्ट to product management side to understand the other side of the product, या to understand the multiple perspectives of it, ताकि वो अपने आप को multiple तरीके से convey कर पाएँ कि like what they are capable of, या like what do you think about this? I think it depends कि आप अपने करियर के किस स्टेज पे और कहाँ पर काम कर रहे हो. मेरा अगर आप एग्जांपल मैं अपनी बात करती हूँ तो मैं बाइकिया में नौकरी कर रही हूँ और बाइकिया में अब्बास our head of product. So his reasoning with me was कि अच्छा तुम्हारे प्रोडक्ट का बहुत एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन तुमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट थोड़ी बहुत की हुई है पिछली कंपनी में. So that's why he hired me as a hybrid, right? And he would tell me कि Uber and American style जो प्रोडक्ट डिजाइनर्स होते हैं, Uber, Airbnb वगैरह में, they don't just do UI, they take care of user testing, they take care of research, competitor analysis, and they even make the tickets and work with devs and all of that. Like they do everything from ideation to launch and sometimes even post launch. इनफैक्ट मेरे लास्ट कुछ क्वार्टर से यही लाइक मेरा स्ट्रगल रहा है या मेरी बहस रही उनके साथ कि भाई मुझे नहीं करनी है एनालिटिक्स, मुझे नंबर्स करने होते, मैं कोई नंबर्स की नौकरी में जाती. बट ही इज लाइक यू हैव टू डू दिस. एंड दिस इज लाइक अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन ऑब्वियसली, बट एंड इट्स डिबेटेबल बिकॉज इन पाकिस्तान कुछ कम कंपनीज हैं जहाँ पर प्रोडक्ट डिजाइनर्स किस तरह के रोल होते हैं. डेफिनेटली द आइडिएशन टू लॉन्च पार्ट इज वेरी ट्रू, एंड इफ यू कैन गेट ट्रेनिंग इन दैट एंड बी गुड विद दैट कि आपको यूजर टेस्टिंग आ गई, आइडिएशन, कंपेटिटर एनालिसिस, डॉक्यूमेंटेशन अच्छी आती है,
सब कुछ अच्छा आता है ना, वहाँ तक आप you're golden, you're good, because that is what most people are looking for with product designers. But when you bring in like data analytics and stuff, that's usually bigger corporates who are looking for that. अब मेरी personal perspective अभी like life के like stage पे, career के stage पे आके यही है. I feel like even though I'm a product designer, with the advent of AI and all, there is a lot of conversation and a lot of like perceptions that designers are very expendable. So job security का definitely issue है. And I also feel like career growth is also very limited because product design is such a competitive field because इतनी limited jobs हैं, right? तुम अब अभी खोल के आप देखेंगे LinkedIn पे product designer की jobs कितनी हैं versus like a product manager. So you're gonna find a big difference, not just like in Pakistan but the world over. So right now I'm thinking maybe I should finally learn data and try to like gravitate towards product design and business analysis because that is a more secure job. But as I said, it depends on where you are like in your career and also where you are working. So I'm lucky like I'm working at Baikia कि मैंने ये सारा हिस्सा सीख लिया है और अब मुझे दूसरे हिस्से सीखने की ज़रूरत है. But you know कुछ जगह कुछ companies में depend करता है, खासकर पाकिस्तान में, कि आप strictly वो आपसे pixel pushing करा रहे होते हैं, purely pixel pushing करा रहे होते हैं. And because like Pakistan's tech market, I feel like is still developing. Like when you look at a proper like UX design, product design की नौकरियाँ ना, तो वो तो specialized होती हैं. Interaction designer फलां है, ये UI designer है, ये copy handle करता है, ये करता है, वो करता है. ये बहुत like Google में ये नौकरियाँ होंगी, बाहर ही आपको नौकरियाँ मिल जाएंगी. And there I feel like you can afford to be like long term for the rest of your career a designer. But I feel like with Pakistan, the way things are going and the way that people view designers, बेइज्जती होना है आपको. Like मैं पहले designer थी और मैं product में इसलिए आई कि you know it's better paying and it's more important work. But now I'm at that stage where like shit, now I have to pivot again. So yeah, in Pakistan you do have to think about pivoting and understanding. Yeah, if you do want to stay in design, then you really need to develop a very holistic skill set and like know how to kind of market it to people and market it to companies and all. अब ना एक बहुत बहुत हार्श क्वेश्चन आने लगे क्योंकि ये अभी अभी मेरे माइंड में बना है. और ये प्रॉब्ली मेजॉरिटी डिज़ाइनर्स की समटाइम्स कंप्लेन होती है. ये कंप्लेन तो नहीं होती, दुखड़ा होता है एक तरीके से. और वो ये होता है कि लाइक सिंस एवरीवन इज़ लुकिंग फॉर द डिज़ाइनर जो कि आइडिएशन से लॉन्च तक लेके जाएगा, राइट. और वो ले भी गया. एक आपका बेटा लॉन्च हो गया, ठीक है, यू हैव लाइक बेटा यूज़र्स जितने भी हैं एंड ऑल. जब फीडबैक की बारी आती है, राइट, कस्टमर्स के फीडबैक की या यूज़र्स के फीडबैक की, और आगे हमने फ़ीचर्स डिसाइड करने होते हैं कि कौन सा फ़ीचर आगे जाना चाहिए, कौन सा नहीं जाना चाहिए. उस मीटिंग में डिज़ाइनर नहीं होता, बाकी सब होते हैं. उससे बता दिया जाता है कि भाई ये बनाना है और क्यों बनाना है ये भी तुम ही सोचो. हमें सिर्फ ये पता है कि ये बनाना है और इस डेट तक हमने इसको पुश करना है, इस स्प्रिंट में ये चीज़ जाएगी और ये चीज़ नहीं जाएगी. सो जो ठेकेदार है प्रॉब्ली आइडिएशन से लेकर लॉन्च तक का, वो डिसीजन लाइक उसके पास डिसीजन पावर भी ज़ीरो है और उसको इंक्लूड ही नहीं किया जाता है इस सारी डिस्कशन में कि भाई हम आगे इस प्रोडक्ट का विजन ये सोच रहे हैं, तुम बताओ तुम क्या सोचते हो इस पर्टिकुलरली इस सिचुएशन में तुम क्या सोचते हो कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं. सिंस अगेन यू हैव द नॉलेज, यू हैव द कंपैरेटिव एनालिसिस, यू हैव द स्कोप. प्रॉब्ली वो जिसे कहते हैं ना, जिस तरह आपने पौधे को पानी डाल डाल के बड़ा किया होता है, राइट. अब उसको काटना है या उसको और बढ़ाना है, इस मीटिंग में आप हो ही नहीं, तो लाइक व्हाट्स द पॉइंट. तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? नहीं, मैं इस मामले में लकी रही थी because again I was hired as like a hybrid between a PM and a PD, so I was always involved in the meetings, even though like my other two design colleagues were not. Scrums में मैं जाती थी, हमारी bi-weeklies में मैं जाती थी, even and so at one point Abbas did tell the other designers कि तुम लोग भी जाया करो, तुम लोगों को भी पता होना चाहिए कि क्या बात हो रही है, तुम लोगों की डिजाइन और टिकट्स की बात होती है ना, कि इंजीनियर्स तो यही कहते हैं कि ये तो नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता, ये इसमें 3 महीने लगेंगे बनाने में. तो आपको उधर होना चाहिए कि आप उनसे पूछ सको कि भाई बना क्या सकते हो तुम, मतलब इस तरह या नेगोशिएट कर सको, आप समझ सको कि क्या बन सकता है. आई वाज टेकन इनटू दीज मीटिंग्स सो आई कुड अंडरस्टैंड कि ओके व्हाट इज पॉसिबल टू बिल्ड, राइट. सो आई थिंक ज़्यादातर आई थिंक वही अप्रोच है कि डिज़ाइनर जो है एक मजदूर समझा जाता है. लाइक डिज़ाइनर्स आर स्टिल एट द बॉटम ऑफ द फूड चेन, आई फील, प्रोफेशनली स्पीकिंग. बट आई ऑल्सो फील लाइक designers do not necessarily have the interpersonal skills to kind of push themselves in that direction as well. So yeah, I was gonna say the same thing that you said. And I think as a nation हमें feedback ना लेना आता ना देना आता है. और मुझे अगर मैं theorize करूँ मैं कहूँगी partially because हमारे difference इतना है. Like आप देखो गुर्बत है तो शदीद गुर्बत है और अमीर हैं तो इंतहाई अमीर हैं. So people who have money, they only care about image. They'll buy insanely expensive things. क्योंकि फलां खरीदता है बाहर, फलां गोरा बनाता है, फलां ये करता है. अब गरीब है वो तो खरीद ही नहीं सकता कुछ, उसको तो अभी सिर्फ सर्वाइवल की होश है.
और मिडिल क्लास जो है, मिडिल क्लास इन दोनों के बीच में फंसा है, इन द सेंस कि इवन इन थॉट, राइट? सो इवन इन थॉट आई फील लाइक एज अ नेशन वी आर stuck in this like लोग क्या कहेंगे, सोशल परसेप्शन के इश्यूज, एंड उसमें हमारे ईगोज बहुत हैं. एज अ वुमेन आई वुड से मर्दों की ईगोज बहुत है, बट आई थिंक जनरली भी जिस तरह सोसाइटी बदलती जा रही है और जिस तरह की, बिकॉज वही इकोनॉमिक हालात जब आपके मुश्किल होते हैं तो society also kind of goes through a change. You'll see that people will become more conservative or they'll become more radical in certain things. So that causes people to have like more egos, I feel. And that is also why it's so difficult for people to give genuine helpful feedback. Like अगर आप कभी apps का feedback देखें LinkedIn पे ना, मैंने जो भी देखा है, pathetic app, pathetic, idiotic piece of shit, and I'm like what? क्या 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 हो गया इस ऐप में? आपकी इंफॉर्मेशन लीक हो गई थी, क्या हो गया था? कुछ नहीं, एक बग आ गया होगा छोटा सा, उस पे वो इतनी गालियां दे रहे हैं. आप ये भी कह सकते हो कि हे फला ऐप, दिस इज अ प्रॉब्लम दैट यू आर हैविंग, प्लीज फिक्स इट, राइट? नहीं, वो सीधा सीधा आपके घर वालों पे आएंगे. सो सिमिलरली व्हेन पीपल आर टेकिंग फीडबैक, अल्लाह माफ करे कोई इधर मर के फीडबैक ना ले. आप अगर बोलो, फर्ज करो किसी भी किस्म का फीडबैक दो, चाहे वो डिज़ाइन पे हो, काम पे हो. अगर लाइक डिज़ाइनर्स हैं, थोड़ा पर्सनली हम लोग ले लेंगे. डेव्स हैं, तो डेव्स को अगर बोलो कि यार ये चीज़ आपने सही नहीं बनाई, मैंने क्या डिज़ाइन में बनाया था, क्या कहेंगे, शाहरुख खान और आपने मुझे क्या साहिर लोधी बना के दे दिया है. तो वो वाला मतलब यू नो दिल टेक इट वेरी पर्सनली. आप हंस के मजाक करके भी बोलोगे, पर्सनली लेंगे, कोई इशू होगा. आप फीडबैक दोगे किसी के उस पर कि भाई आप ये सही नहीं कर रहे, वो सही नहीं कर रहे. So I think there are always issues here. People are just not very secure about things because we as a society also do not encourage emotional awareness and expression. तो लोगों की emotional maturity जो है ही नहीं, वो stunted है काफी. तो इसलिए I feel like generally फीडबैक लेने और देने में बस लोगों की ली और दी जाती है, ऑनेस्टली स्पीकिंग. क्योंकि आई बिलीव कि लाइक फीडबैक देना या फीडबैक लेना ये एक ऐसा आर्ट है कि लाइक इस पर लाइक आपके सेंटिमेंट नहीं हर्ट होने चाहिए. क्रिटिसिज्म होना चाहिए बट कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए. ये नहीं कि आपने उसके लाइक कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ा दी एंड यू आर लाइक आई एम जस्ट बीइंग ट्रांसपेरेंट. सही है. Yeah, like you know the excuse people have for being honest. I'm just being honest. ठीक है बेटा, मैं भी तेरे साथ honest होती हूँ, because मैं तो हूँ ऐसी. आप जिस तरह मुझे ट्रीट करेंगे, मैं आपको उसी तरह ट्रीट करूंगी. फिर आप देखती हूँ आपको कितना अच्छा लगता है ना. And feedback is something you have to learn. So I am a writer as well. Like when I say I'm an artist, I do design as like something professionally to earn bread and butter. But I'm basically like a fiction writer at heart. So I've done writing workshops, and in those workshops, I've done multiple workshops. I've taken courses. वो आपको बकायदा सिखाते हैं कि आपको लोगों की कहानियों पे कैसे फीडबैक देना है और आपको लेने कैसा है. यू आर सपोज टू प्रेजेंट योर वर्क एज जस्ट लाइक अ पीस ऑफ वर्क, और आप कोशिश यही होती है, यू आर नॉट सपोज टू बी अटैच्ड टू योर वर्क, राइट? नॉट टू अटैच्ड और व्हाटएवर. you and like you can tell people the feedback you're looking for, and जब आप feedback दे रहे होते हैं, you are also not supposed to like attack the person. You can have questions. So वो ये कि ये एक चीज़ सीखनी होती है आपको. कुछ लोग सीख लेते हैं, कुछ लोग नहीं सीखते. आई फील लाइक ज़्यादातर लोग, इवन आर्टिस्ट कम्युनिटी में, आई नो पीपल से आर्टिस्ट आर सेंसिटिव, बट आई थिंक सिर्फ लाइक फीडबैक लेने में सेंसिटिव है, देने में नहीं है हमारे यहाँ. और ये चीज़ एक डेवलप करने की ज़रूरत है, बिकॉज कम्युनिटी की ज़्यादा ज़रूरत है. आई फील लाइक वी नीड मोर कम्युनिटीज़, आर्टिस्ट में या वैसे जनरली प्रोफेशनल्स में. पीपल आर ट्राइंग टू डेवलप दैट, बट इस तरह के ईगोज क्लैश हो जाते हैं, इश्यूज हो जाते हैं. I completely understand and agree with this. बहुत सीरियस बातें हो गई हैं भाई. Let's just move on to the fun side of the conversation. And that is we live in the world of demos and buzzwords and all. So कौन सा ऐसा buzzword है जो कि आप अभी बैन करना चाहेंगे कि जिसने ये buzzword यूज़ किया ना, वो ख़त्म है, दुनिया से ख़त्म है वो भी. आई फील लाइक प्रोडक्ट ही बैन कर दें हैं. ये सारे प्रोडक्ट के आपके कॉन्फ्रेंसेस वगैरह सब कुछ हो रहा होता है, एंड ऑल पीपल विल जस्ट दिस प्रोडक्ट इज दिस एंड दैट प्रोडक्ट इज दैट, एंड ये सारे फिर उसके साथ जो सारे आपके छोटा मोटा लिंगो आ जाता है. लाइक आई हैव रेड अबाउट दिस, आई हैव आल्सो लाइक सीन पीपल टॉक अबाउट इट, जो हमसे काफी सीनियर लोग हैं. वो ये कहते हैं कि भाई प्रोडक्ट मैनेजमेंट तो नई चीज आई, उससे पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती थी. ये जो आप बकवास कर रहे हैं कि फलां चीज, ये वाला मेथड, वो वाला मेथड, ये उस वक्त कुछ और कहलाया जाता था, कहलाया कुछ नहीं जाता था. बिकॉज आई फील लाइक वही बात है कि जैसे हम बात कर रहे थे कि when in a company, if someone doesn't know what they're doing, they'll do politics. So similarly, if someone is in a field where they feel like their field is not important enough, they'll invent a lot of jargon.
लाइक इनिशियली आप जार्गन इसलिए बनाते हो कि कोई चीज़ आसान हो जाए याद करना, कि या वैसे आपस की हमारी कोई इस तरह की बात हो ना. But a lot of times I feel like much of the jargon in product is just to like feel important and seem important, and it's not necessarily productive, and it's just like एक clique बनाया हुआ है कि we're doing this conference is happening now. Like I do think some of the work that happens at conferences is good and all, but also like half the time, like half of those people are the same people you will see at every conference. And I'm like, is this just like a self-congratulatory thing? Are we ever going to have like constructive feedback or something? Or have like genuine insights into something? So ये मतलब इन चीज़ों के बारे में मैं सोचती हूँ कभी-कभी. And maybe that's why I'm not invited to some of these things. अच्छा, मेरा ना जो पॉडकास्ट इवन स्टार्ट करने की भी जो इवन एम था या मोटिवेशन था, वो ये था कि लेट्स जस्ट डिस्कवर द अनडिस्कवर्ड हीरोज़. क्योंकि कुछ जो लोग मशहूर हो चुके हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुके हैं, और बहुत अच्छी बात है कि लाइक उन्हें इतना एक्सपोजर मिला है कि नाउ दे हैव प्रोबेबली सम स्टोरीज़ जिसको वो लाइक बता सकते हैं, उससे इंस्पायर कर सकते हैं, उससे वैल्यू ऐड कर सकते हैं. बट 100 तो ऐसे लोग हैं जिनका लोगों को पता भी नहीं है. तो मैं अपने आसपास से उन आम लोगों को स्टार्ट करता हूँ अप्रोच करना कि भाई आओ तुम अपनी स्टोरीज़ बताओ, तुम किस तरह से चीज़ों को लेके चलते हो, क्या तुम्हारी इंस्पिरेशंस होती हैं, क्या तुम्हारी मोटिवेशन तो नहीं, डिसिप्लिन होते हैं, ठीक है, जिसको आप ओवर द टाइम बिल्ड करते हो, फिर एग्जीक्यूट करते हो, फिर उससे क्या फ़ायदा आपको होता है, क्या लोगों को फ़ायदा होता है. तो प्रॉबली क्योंकि वो ना काफ़ी रियल स्टोरीज़ होती हैं. अब कुछ जो स्टोरीज़ हैं ना जो कि बहुत लाइक बड़े लेवल पे लोग चले गए हैं, प्रॉबली हम उससे रिलेट नहीं कर पाते हैं. हम किससे रिलेट कर पाते हैं? जो हमसे अभी थोड़ा सा आगे होता है. जिस तरह आपने कहा कि लाइक द बेस्ट पर्सन टू अप्रोच इज़ जो कि तुमसे थोड़ा सा ऊपर सीनियर है, या और सेम चीज़ एक रैंक ऊपर हो से. या सिमिलरली लाइक यही चीज़ मैंने मुज़म्मिल हसन की जो पॉडकास्ट थी शजी जाजी के साथ, वो भी यही बात कर रहे थे कि लाइक आप बजाय से कि आप टॉप के लोगों को लाइक टारगेट करो उनसे हेल्प वगैरह लेने के लिए, आप अपने से सिर्फ एक स्टेप जो सीनियर है ना, आप 1 या 2 स्टेप जो सीनियर है, 3 या 4 साल जो सीनियर आपसे, आप उनको अपने लूप में लेके आओ. क्योंकि अभी वो लाइक अभी वो चीज़ करके हटे हैं, तो प्रोबेबली उनकी इनसाइट्स भी बहुत फ्रेश होंगी उस चीज़ से रिलेटेड. फ्रेश होंगी, ज़्यादा रेलेवेंट होंगी. एंड द अदर थिंग इज व्हेन यू टॉक अबाउट लाइक दीज फाउंडर्स वगैरह, आप किसी से भी बात कर लो. अब एक हमारे यहाँ स्टार्टअप है. Should I name the startup? No, I should not. But like, but like, there's a startup that is like, I think working with related to spaces and all. And I was like, that's such an interesting idea. But then I looked into their family, and they have a construction business. And I was like, okay, chalo, they're innovating it by making it into a startup. They already have an existing business. But वही बात है कि a lot of these people that you see in the VC spaces, or by venture capitalist spaces, yeah, और जगह, a lot of them come from very good family backgrounds. आप रिलेट नहीं कर सकते अगर आप मिडिल क्लास हैं. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड हमारे यहाँ जो कि जिस किस्म का माइंड सेट है, और ये पूरी दुनिया के अमीरों का माइंड सेट है, वो किसी को ऐसे अंदर नहीं आने देते हैं. दे स्टे विद देमसेल्व्स, राइट? सो इवन इफ यू ट्राई, आप किसी के बहुत बड़ा बस डंबल उठाओ या जो भी कर लो, वो फिर भी इतना आसान आपके लिए नहीं होगा. सो दैट इज ऑल्सो व्हाई आई वाज सेइंग कम्युनिटी इज इम्पोर्टेंट. ये आपके लेवल के जो लोग हैं वो आपको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं. ऑब्वियसली बीच में लोग स्नेक्स होते हैं, बट लाइक generally I feel like it's just easier to talk to someone who comes from a similar background to you, so you can actually share those struggles.